and welcome to Unacademy, and this is our channel Unacademy CAT. Very good evening to all the learners of Unacademy. Guys, we have started with new series and new batch for GK. All the OMITs 2022 CAT के बाद जो सारे OMITs आते हैं जनवरी से स्टार्टिंग विद दैट, तो उसके लिए मैंने एक नई सीरीज शुरू की है. तो इफ यू आर स्टार्टिंग और इफ यू आर प्लानिंग to prepare for all the OMITs other than CAT, जिसमें GK is a very important part, specifically TISS, this session is must for you. Also guys, we have already covered 2 sessions. हमने पहले ही Introduction to Indian Polity, Features, Sources को cover किया है. We have covered Preamble yesterday. So today we are going to discuss about Union and its Territory, Part 1 of the Constitution. Very good evening Rohit, good evening, welcome to the class. तो Part 1 of the Constitution को आज हम पढ़ेंगे guys. So let's start with the session. So all the people who are going to be here for the very first time, I'm Advocate Rushikesh Kate, MBA LLB, 6+ years of teaching experience, and I will be guiding you for your GK and current affairs section for various entrance exams. That goes for ZAT, IFT, CMAT, and particularly TISS. So guys, this session is for you. Also guys, this is our channel. ये हमारा चैनल है जहाँ पर आप मुझे अभी लाइव देख रहे हो. I come 2 times live in a day. मैं रोज 2 बारी इस चैनल पर लाइव आता हूँ. 1 at 11 AM, जिसमें हम TISSNET का प्रिपरेशन कर रहे हैं. दिस वीक इज बिजनेस अवेयरनेस. लास्ट वीक हमने लेबर लॉज को कवर किया है. तो ऑल द पीपल हु विल बी फोकसिंग ऑन TISSNET 2022, TISSNET के सेशंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आई विल बी टीचिंग यू फॉर योर TISSNET ऑल्सो. दैट वी आर कवरिंग एट 11 AM. And I have started a new GK series और GK batch for you guys. इसमें हम लोग इस वीक में इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं. अगले वीक में we will start with Indian history and geography and subsequently economics also. If in case you have any doubt related to GD, GK, current affairs, प्लीज फील फ्री टू कैच अप विथ मी ऑन माय पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन ज्वाइन माय ग्रुप गाइज एंड गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑफ माय सेशन. वेरी गुड इवनिंग टू यू अविरल. हाउ आर यू डूइंग दिस इवनिंग? आज कैसे हो आप? So CAT 2021 aspirants guys, Unacademy has launched an iconic subscription for you. इसमें आपको 3000+ hours of live classes मिलते हैं, 1200+ hours of special classes and 45 new tests every month for CAT and OMET. So you are going to be 10 steps ahead in your preparation with Unacademy's iconic subscription guys. इसमें प्लस के बेनिफिट्स अगर देखें तो इंडिया के टॉप एडुकेटर जो है CAT के लिए प्लस प्लेटफॉर्म पर, जैसे रवि प्रकाश सर है, समीर सरदाना सर है, उदित Shabana ma'am, Divya ma'am, all these amazing educators, they teach you through interactive live classes on the Plus platform. Structured courses वो आपको ऑफर करते हैं and they also give out their PDFs to you. तो अब आपको बुक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. And live test and quizzes after every course to track your progress in every step of your preparation. ये तो सारे benefits आपको आइकॉनिक में मिल ही जाएंगे. बट along with Plus, Iconic में आपको एक पर्सनल कोच भी दिया जाएगा who will be passed out from a top B school, जो सारे ट्रेंड्स के बारे में वाकिफ होगा और आपको आपके प्रिपरेशन में हर एक स्टेप पर गाइडेंस देगा. ओमिट्स का प्रिपरेशन विल बी एक्सक्लूसिव ईयर. आफ्टर कैट बहुत सारे ओमिट्स आते हैं, जैसे स्नैप है, जैट है, IFT, CMAT, TISS, आई हैव ऑलरेडी मेंशन. इसका एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है. एक्सपर्ट गाइडलाइंस के थ्रू आपको गाइडेंस भी दिया जाता है एंड personalized test analysis to track your progress at every step of your preparation. What else do you need for your CAT preparation guys? This is exactly what you should be looking forward. So all the people who are going to appear for CAT 2021, okay, CAT 2021 के लिए जो appear कर रहा है, who will be looking forward for all the OMETs in 2022 also, 1 year subscription plan is essential for you, क्योंकि फिर एग्जाम के बाद बहुत कुछ प्रिपरेशन होता है. इंटरव्यू प्रिपरेशन है, वैट का प्रिपरेशन है, GE का प्रिपरेशन है. ऑल दिस प्रिपरेशन विल बी डन इन दिस सब्सक्रिप्शन एंड द पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन अर्ली विद Unacademy's iconic subscription should go for the 2-year subscription plan, especially second year और third year में जो फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर में जो होंगे, you should go for the 2-year subscription plan that goes for 41,000 rupees only. Do not forget to use this code guys, RUSHIRUSHI, जो straight away 10% discount आपको दे देगा. Also guys, you should go for the subscription soon, क्योंकि बहुत ही जल्दी प्राइस हाइक होने वाला है सारे सब्सक्रिप्शन में.
So this is the last and the golden opportunity for you to go for the Unacademy subscription with standard prices, and do not forget to use this code RUSHI. straight away 10% discount आपको मिल जाएगा किसी भी subscription पर. Very good evening Amrit, welcome to the class. These are the batches which have started from yesterday. 10th March से score booster batch शुरू हो गया है. इसमें अभिलाषा मैम, उदित सैनी सर एंड परीक्षित सर पढ़ाते हैं. Extreme batch by IM alumni Shankar sir, Arun Sharma sir and Anupam sir are going to teach in this batch. And जो 13th March से शुरू होगी and 15th March से एब्सोल्यूट वीकडे मॉर्निंग बैच शुरू हो रही है कैट 2021 के लिए. आनंदा कुलकर्णी सर, अजिंक्य चोपड़े एंड अचल खन्ना सर will be teaching in this particular batch. Very good evening to you Shubham. I am doing absolutely fine. तो चलिए गाइज आज के सेशन को शुरू करते हैं. particularly union and its territory, that is the part 1 of our constitution. Okay, हमारे constitution में actually आज अगर हम लोग देखेंगे तो कितने parts हैं. How many parts in the constitution today? मैंने आपको first session में ही बताया था. I told you in the first session how many parts in the constitution today, जिसमें से first part is union and its territory. Come on Amrit, Shubham, Aviral, Vishakha. Good evening Vishakha, welcome to the class. कितने parts है constitution में आज? How many parts in the constitution today? Come on, anybody. अगर नहीं पता है तो पता नहीं करके बता दो मुझे, मैं बता दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है. 22 parts were in the beginning of the constitution. Aviral, Amrit, हाँ. So when we adopted the constitution, तब 22 parts थे. Today we have 25 parts. Okay, 25 parts है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. उसमें से पहला पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. यस, सब्बवरपू, गुड इवनिंग. अनि मुर्जा Ami, good evening, welcome to the class. Good evening Rohit. So 25 parts today guys, after 104 amendments. So there are 448 articles, 12 schedules and 25 parts in the constitution today. But जब constitution हमने adopt किया था, there were 395 articles, 8 schedules and 22 parts. उसका आज हम लोग पहला part पढ़ने वाले हैं, that is the union and its territory. Okay, now guys, before we could actually discuss what is union and its territory, हमें थोड़ा background समझना होगा उसका. We need to understand what actually happened. How did we come up as a union and how are we going to define the territory? उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा historical background या फिर थोड़ा उसका background पढ़ना होगा. सबसे पहले तो how did the integration of princely states happen? Okay, we know कि before India became independent, India में 552 princely states हुआ करते थे. Okay, 552 princely states. Can you believe this thing? Okay, hello Kalyani, good evening. 552 princely states हुआ करते थे. So when Mountbatten plan was particularly announced on June 3rd, okay, जून 3rd में माउंटबैटन ने एक्चुअली लैप्स ऑफ पैरामाउंसी को अनाउंस किया था. लैप्स ऑफ पैरामाउंसी मतलब क्या? ब्रिटिश पैरामाउंसी जो है वो लैप्स होने वाला था, बिकॉज देयर वाज गोइंग टू टेक प्लेस अ ट्रांसफर ऑफ पावर. ओके, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंट इंडिया. तो ये ट्रांजिशन पीरियड जो है दैट इज कॉल्ड एज लैप्स ऑफ पैरामाउंसी. दिस एक्चुअली कोलैप्स और इट लैप्स द ब्रिटिश पैरामाउंसी. इसमें अंडर द माउंटबैटन प्लान, लॉर्ड माउंटबैटन हु वाज द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने इस 552 प्रिंसली स्टेट्स को 3 चॉइसेस दिए थे. ओके, दे गिव 3 चॉइसेस टू ऑल दिस प्रिंसली स्टेट्स. सबसे पहला चॉइस वाज वेदर टू स्टे विद इंडिया. ओके, आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते थे, या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते थे, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे. ये 3 चॉइसेस दिए थे सारे प्रिंसली स्टेट्स को. इधर यू कैन ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया. 1947 Sabbavarapu, 1947 Mountbatten plan was 3rd June 1947. Okay, so इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया को ज्वाइन कर सकते थे, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते थे, या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे. सो आउट ऑफ दिस 552 प्रिंसली स्टेट्स, 549 agreed to join the Union of India. Okay, Union of India को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, एंड दे वर इंडक्टेड या फिर इंट्रोड्यूस्ड और फिर या फिर दे वर ब्रॉट
अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया by the means of instrument of accession. ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको इंडियन यूनियन में इंक्लूड कर दिया था. ओके, रिमेंबर दिस टर्म, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. ओके, इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को याद रखना. ऑलराइट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत 549 princely state they agreed to join the Union of India. There were only 3 territories, या फिर sorry not territories, there were only 3 princely states which did not agree. One was Kashmir, okay, because Kashmir के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, he wanted to stay independent. Hello Annie Bose, good evening, welcome to the class. तो कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, he wanted to stay independent. जूनागढ़ के जो राजा थे, he wanted to go into Pakistan because he was promised a very high profile या फिर high portfolio in the Pakistan cabinet, and Hyderabad's Nizam also wanted to join into Pakistan. However, ये तीनों भी states को इंडिया में इंडक्ट कर दिया था by various actions. Now it was सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंडिया के सबसे पहले इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर भी हम कह सकते थे. ही वॉज ऑल्सो द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिंगल हैंडेडली इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को कैरी आउट किया था. मतलब 552 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में कैसे इंटीग्रेट करना है. हेलो अंजलि प्रिया, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. इंडिया में कैसे इंटीग्रेट करना है, ये जो काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिंगल हैंडेडली काम किया था. ओनली वी.के. मेनन ने उनकी मदद की थी इन दिस थिंग. तो कश्मीर के जो राजा थे उनको बार बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपना मैसेज देते थे, व्हाट इज द डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू टेक, बिकॉज 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंट होने वाले थे एंड वी हैड टू कंप्लीट द वर्क ऑफ इंडियन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. रादर मतलब एज टाइम पास बाय राजा हरि सिंह ने कोई भी डिसीजन नहीं दिया था. ही केप्ट इट ऑल इन अ सस्पेंस एंड अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी. बट हाउएवर with the Pakistan regular military and कश्मीर के जो द आज़ाद कश्मीर फोर्सेस थे, इन लोगों ने कश्मीर के पार्ट्स को मिलिट्रीली एनेक्स्ड करना शुरू कर दिया था, मतलब कब्जा करना शुरू कर दिया था. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव अ पीओके टुडे. ओके, आज हमारे पास पीओके है, वो इसी कारण है. तो जब द कबाइज और द रेडर्स वर सपोज टू रीच श्रीनगर इन 1 day or 2, उस समय राजा हरि सिंह ने डिसीजन लिया कि हमें जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन यूनियन में इंक्लूड कर देना चाहिए. एंड दैट टाइम राजा हरि सिंह इंडक्टेड कश्मीर इनटू द इंडियन यूनियन बाय द मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में इंक्लूड कर दिया था. शेख अब्दुल्ला हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट टाइम एंड क्लोज एड टू जम्मू एंड टू जवाहरलाल नेहरू, एक्चुअली एटोनिमस या फिर जो स्पेशल पावर्स हमने जम्मू एंड कश्मीर को अंडर 370 दिए थे, उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर वाज ऑटोनॉमस स्टेट टिल 2019. फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 370 की और जम्मू एंड कश्मीर के जो पावर्स थे या फिर जो स्पेशल पावर्स दिए गए थे उसे डिसॉल्व कर दिया. हाउएवर रिमेंबर दिस पार्ट. ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये टर्म याद रखना. जम्मू एंड कश्मीर वाज इंडक्टेड इनटू द इंडियन यूनियन बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसके तहत कर दिया गया था. अविरल खरे, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को. फिर जूनागढ़ का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया गया था थ्रू रेफरेंडम. ओके, थ्रू रेफरेंडम. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो, या फिर ये भी चीज याद रखना है कि इन व्हाट वे द प्रॉब्लम ऑफ जूनागढ़ वॉज सॉल्व. जूनागढ़ वॉज सॉल्व बाय द मीन्स ऑफ रेफरेंडम. ओके, रेफरेंडम मतलब क्या? पब्लिक ओपिनियन. ओके, उसे पब्लिक ओपिनियन कहते हैं. प्लेबिसाइड, लेबिसाइड, रेफरेंडम, दीज आर द टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, ये टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी है. तो जम्मू एंड जूनागढ़ में एक रेफरेंडम कैरी आउट किया था जहां पर लोगों ने ही डिसाइड किया कि नो मैटर व्हाट आवर किंग थिंग्स
or what our ruler thinks, we want to induct Junagadh into Union of India. और उसी तरह जूनागढ़ को इंडियन यूनियन में इंक्लूड कर दिया गया था. And then it was Hyderabad. Okay, the Hyderabad's Nizam was actually very adamant on his decision, but the problem of Hyderabad was solved through police action. Okay, police action के थ्रू हैदराबाद का प्रॉब्लम सॉल्व किया था. एक ऑपरेशन किया था, दैट वाज नोन एज ऑपरेशन पोलो. ओके, ऑपरेशन पोलो किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया था एंड हैदराबाद को फोर्सफुली किया था. यस, पुलिस एक्शन, ऑपरेशन पोलो कैरी आउट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसमें हैदराबाद को पूरी तरफ से, मतलब चारों तरफ से घेर लिया था और द निजाम ऑफ हैदराबाद ही रैन अवे. This is how the entire integration of princely state was carried out. Okay, entire princely state was carried out. Lapse of paramountcy याद रखना, क्योंकि ब्रिटिश पैरामाउंसी लैप्स हो रही थी और इंडियन पैरामाउंसी वाज कमिंग इनटू पिक्चर. इसके तहत माउंटबैटन ने 3 ऑप्शन दिए थे प्रिंसली स्टेट्स को. कितने प्रिंसली स्टेट थे? 552. दैट ईदर यू कैन जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया और ईदर यू कैन जॉइन द यूनियन ऑफ पाकिस्तान, या फिर ईदर यू कैन बी इंडिपेंडेंट. कश्मीर वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, बट बिकॉज ऑफ मिलिट्री annexation of from the Azad Kashmir forces with the help of regular Pakistan military, Raja Hari Singh decided to induct Kashmir through the instrument of accession into the Indian Union. जूनागढ़ का प्रॉब्लम जो है वो रेफरेंडम में सॉल्व किया गया था, और हैदराबाद का जो प्रॉब्लम है वो पुलिस एक्शन, दैट इज ऑपरेशन पोलो के थ्रू सॉल्व किया गया था. So is this clear guys? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट सब लोगों को क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इज क्लियर विद एवरीबॉडी? सब लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स क्लियर है? डू वी हैव 11:30 क्लास टुडे? नो, 11:30 नहीं सब वरुपू. वी हैव 10 PM क्लास टुडे. आज 10 बजे का क्लास है. वी हैव 10 PM क्लास, जिसमें हम डेली जीके अपडेट्स करेंगे. चलो, so the next point or next topic of discussion today is reorganization of states. Okay, reorganization of states. अब तुम लोग बोलोगे कि सर अगर हमें इंडिपेंडेंट इंडिया, if we were independent India, why there was a need for reorganization of states? Okay, states का reorganization की क्या जरूरत थी? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अच्छे से कैरी फॉरवर्ड की थी, तो why we need a reorganization of state? तो let me tell you guys, instrument of accession मतलब agreement between two governments. Yes, Shubham, instrument of accession particularly means agreement between two government की, ठीक है. These are the clauses that we are going to induct our princely state into the Indian Union. जो भी conditions थे उसे agree करके demarcation वगैरह करके उसे induct कर दिया गया था. ओके, पूजा सहानी, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. उसे कहते हैं reorganization, उसे कहते हैं instrument of accession. Now why was there a need for reorganization of states? तो let me tell you guys, हमारे पास 1953 तक कोई भी ऑफिशियल स्टेट था ही नहीं. We had no state till 1953. 53 तक हमारे पास कोई स्टेट नहीं था. India was actually divided into 4 parts. Okay, 4 parts है. One is part A, one is part B, okay, one is part C, and one is part D. तो गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, कमिश्नर्स जो डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते थे, उसके हिसाब से ये बाइफर्केशन किया गया था. सो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी. पार्ट डी में ज्यादा स्टेट्स नहीं थे. अंडमान एंड निकोबार, ये सोल स्टेट को पार्ट डी में रखा गया था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है. नाउ व्हाई, अगर इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू पार्ट ए, बी, सी, डी, हाउ डिड द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस? ओके, स्टेट का एग्जिस्टेंस कैसे आया? ओके, तो ये समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक्चुअली व्हेन वी वर इंडिपेंडेंट, जब 1947 में जब हमने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को कवर कर दिया था. ओके, हाय एजे, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. तो व्हेन वी डिसाइडेड टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स, पर्टिकुलरली देयर वाज अ डिमांड. ओके, देयर वाज अ डिमांड. डिमांड कहां से था? इट वाज फ्रॉम द
साउथ इंडियन स्टेट्स, ओके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे, they were demanding the government to reorganize the state on the basis of linguistic factor, okay, linguistic factor के ऊपर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का डिमांड गवर्नमेंट के पास किया था. लिंग्विस्टिक फैक्टर मतलब क्या? लैंग्वेज, ओके, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज होता है. नाउ देयर वर कमिटीज व्हेन देयर वर, जब ज्यादा कुछ डिमांड आ रहे थे, व्हेन देयर वाज डिमांड that was coming up from the South Indian state, okay, South Indian state से exclusive explicit demand आ रहा था कि नहीं, आप linguistic basis पर ही या फिर language के basis पर ही state का reorganization करो. गवर्नमेंट ने तब डिसाइड किया कि ठीक है, हम committees फॉर्म करते हैं and let us look into this matter, okay, cannot be divided into linguistic basis. एसके धार कमेटी, yes. So सबसे पहली जो कमेटी थी वो एसके धार थी, okay, एसके धार was the chairman of this particular committee, इसीलिए उसे एसके धार कमेटी कहा जाता है. Now एसके धार कमेटी when they submitted their report, उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम इंडिया को डिवाइड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डिवाइड इंडिया इनटू लिंग्विस्टिक बेसिस, बट अगर आपको स्टेट को डिवाइड करना ही है, आप उसे एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पर, ओके, या फिर उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से आप अगर चाहो तो उसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हो. What are you talking about? I'm new here. Hi Yash, we are talking about reorganization of states. This is one of the chapters under Indian Polity, that is the Constitution of India, जो OMITS 2022 के लिए बहुत ही important subject है. So we are talking about that. I hope you will join the discussion and be there till the end of discussion. ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, लैंग्वेज के हिसाब से मत करो, तुम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से कितना कन्वीनियंट हो सकता है उस हिसाब के ऊपर से आप रीऑर्गेनाइज करो. बट द डिमांड, ओके, बट द डिमांड फ्रॉम द साउथ इंडियन स्टेट्स बिकेम मोर एग्रेसिव, ओके, वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे. सो गवर्नमेंट ने एक और कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की, दैट इज नोन एज द जेवीपी कमिटी, ओके, जेवीपी कमिटी. जेवीपी कमिटी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन मेंबर्स की, ओके, ये तीन मेंबर्स की कमिटी थी. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी कमिटी. इस कमिटी ने भी कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से ही हम उसे रीऑर्गेनाइज कर सकते थे. बट अगेन द डिमांड बिकेम मोर एंड मोर एग्रेसिव. 1952 में अगर हम देखेंगे, ओके, 1952 में the demand became violent, okay, डिमांड जो है वो वायलेंट हो गई. एंड इसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर जो थे, नोन एज श्री रामुलू सर, ओके, श्री रामुलू सर particularly died. Shri Ramulu ji set on fire fast until death Congress leader after the AP was formed. Okay, yes. So Shri Ramulu sir, who was the senior Congress leader at that particular time, he died as a result of fast until death. Okay, उन्होंने fast रखा था so that the government should listen to their demand, and he was dead because of this thing. So violence जो है, nahi sonali, it will be declared on 16th of March. Okay, so the dates are out for the result. TISSNET 2021 का जो रिजल्ट है वो 16th of March को आएगा. Okay, hopefully you will clear TISSNET and TISSMAT में हमने जो भी सेशंस कवर किए हैं आप उसे कवर कर लोगे जल्दी से. So it became aggressive and became more violent. तो फिर गवर्नमेंट ने तब डिसाइड किया कि आंध्र प्रदेश, ओके, आंध्र प्रदेश इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेट. जेवीपी कमेटी में लिंग्विस्टिक बेसिस पर हुआ था ना, नो विशाखा, जेवीपी कमेटी में लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं हुआ था. आंध्र प्रदेश was the first state which was formed on 1st of October 1953. Okay, 1st of October 1953 को आंध्र प्रदेश is the first state. Sir, what are your views on physics wala? I'm not really sure, Abbas. I am not a physics faculty, so
I have no clue about him. However, I want to focus on my subject, तो आप इस subject पर ज़्यादा focus करो. Okay? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश was the first state which was made on the linguistic basis. मतलब language के हिसाब से आंध्र प्रदेश 1953 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहले स्टेट बना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. फिर गवर्नमेंट ने एक और कमिटी बिठाई थी, दैट इज द फजल अली कमीशन. ओके, फजल अली कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया 1955 में. उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको अगर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है तो आप कर सकते हो. ओके, इफ यू रियली वांट टू keep the state or reorganize the states on the basis of language, you can do it, but please one state one language ये principle मत रखो. Any person speaking any language can stay in any state. उस हिसाब से आप वो प्रिंसिपल रखो. वन स्टेट वन लैंग्वेज, ये प्रिंसिपल के हिसाब से आप उसको रीऑर्गेनाइज मत करो. हाउएवर, इफ यू वांट टू डिवाइड और इफ यू वांट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यू कैन डू इट. फिर उसके बाद एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था. ओके, देयर वाज लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर. एब्सोल्युटली करेक्ट. So State Reorganization Act was passed in 1956. Okay, 1956 में एक State Reorganization पास हुआ था and accordingly all the states were divided later on. Constitutional Amendment Act करके अलग अलग states बने थे from 1956 on the basis of language. तो आप देख सकते हो कि सारा जो states है हमारे आज देश में, we have how many states in the country today? कितने states है हमारे country में आज? How many states in our country today? कोई बता सकता है? How many states, guys? How many states in the country today? Anybody? Come on, guys, fast. This is easy question. काफी easy question है ये. How many states? 28 states in the country today. 28. And how many union territories? 28 states in the country today. और कितने union territories है? Since 2019. Correct, Amrit. Since 2019 we have 28 states. Okay, 28 राज्य है हमारे देश में. And how many union territories, guys? कितने union territories है? 8 or 9? 8 or 9? 8. That is correct. Okay. जम्मू एंड कश्मीर के अब्रोगेशन, स्पेशल स्टेटस के अब्रोगेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर वाज मेड अ यूनियन टेरिटरी. सो जम्मू एंड कश्मीर इज नो लॉन्गर अ स्टेट, इट्स नाउ अ यूनियन टेरिटरी. पहले हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे, बट तो 7 + 2 हो गए 9. But January 2022 में the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, they were clubbed. Okay, they were clubbed. So the total number came to 8 again. So today we have 28 states and Union Territories. Union Territories मतलब centrally administered होते हैं. Okay, they are centrally administered. They are administered by the central government. Okay, Union Territories का मतलब होता है centrally administered. Okay, centrally administered. After 1956, 14 states and 6 UTs. Yes, 1956 में 14 states बने थे. Okay, 14 states बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे तब. ओके, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किए गए थे और सारे स्टेट्स को अलग अलग स्टेटहुड दे दिया गया था. इसीलिए वी सी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स टुडे आर बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस. गुजरात में गुजराती ज़्यादा बोली जाती है, राजस्थान में मारवाड़ी ज़्यादा बोली जाती है, महाराष्ट्र इज मराठी, कर्नाटका इज कन्नड़, आंध्र प्रदेश इज तेलुगु, तेलंगाना इज तेलुगु अगेन, तमिलनाडु इज तमिल, फिर केरला इज मलयालम, फिर उड़ीसा, ओके, उड़ीसा में ओडियाई, वेस्ट बंगाल इज बांग्ला लैंग्वेज, ओके, बंगाली लैंग्वेज. तो इसी के बेसिस पर, ओके, इसी के बेसिस पर पर्टिकुलरली वी द स्टेट्स वर डिवाइडेड. समझ में आया? अंडरस्टूड गाइज? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये पार्ट समझ में आ गया है सब लोगों को?
हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स समझ में आ गया सब लोगों को? सर, व्हेन वाज दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली क्लब? जनवरी 2022, जनवरी 2020, जैन 2020 में हुआ था अमृत, जैन 2020, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ओके, क्लियर? चलो फिर, okay guys, so I wanted to tell you that you can watch all my free sessions for absolutely free, जिसे हम स्पेशल सेशंस कहते हैं। I take a lot of free sessions for you guys। अनअकैडमी पर मैं बहुत सारा फ्री सेशंस लेता हूँ आपके प्रिपरेशन के लिए, एंड यू गाइज कैन अनलॉक द वर्ल्ड ऑफ जीके। अनलिमिटेड टाइम्स आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो। यू जस्ट ओनली हैव टू पुट दिस कोड रुशि, ओके, RUSHI रुशि। दिस इज द कोड दैट you should be using in order to unlock all my free classes and learn absolutely for free on the Unacademy learning platform. Okay, Unacademy learning platform पर आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हो। You just have to use this code RUSHI रुशि. Okay, now this is exactly what we are going to discuss now. अब हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ओके, ज्योग्राफी की क्लासेस स्पेशल क्लासेस में होगी। यस शुभम, probably most probably 17th मार्च को, ओके, 17 मार्च को वी विल बी कंप्लीटिंग विद CMAT टेस्ट सीरीज। जो CMAT के 15 टेस्ट हमने डिसाइड किए हैं ना, वो 17 मार्च को खत्म हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 18th ऑफ मार्च, ओके, 18th ऑफ मार्च से हम लोग जियोग्राफी शुरू कर देंगे, ओके, स्पेशल क्लासेस में विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग जियोग्राफी शुरू कर देंगे। ऑलराइट, सो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ओके, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पार्ट 1 को डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। देयर आर 4 आर्टिकल्स, ओके, 4 आर्टिकल्स है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला इज आर्टिकल नंबर 1, ओके। Yes, Shubham, I know कि you come every day at 5 PM for the quiz, and I'm really glad you are taking up your preparation so seriously. Other people also are requested to take your preparation seriously and attend all the GK sections, क्योंकि GK section in most of the exam is a break it or make it section guys, okay। हम लोग क्वांट के प्रिपरेशन में, LRDI के प्रिपरेशन में, VARC के प्रिपरेशन में GK की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब एग्जाम पास में आता है तो हमें टेंशन होता है कि अब हम जीके का इतना सारा है, जीके का पढ़ाई कैसे करेंगे। तो आई एम टेकिंग रेगुलर सेशंस फॉर ऑल द पीपल, फॉर TISSNET ऑल्सो एंड फॉर CMAT ऑल्सो, जो अभी अगले साल जैट, CMAT, IFT, TISS देने वाले हैं। तो वी आर प्रिपेयरिंग। शायद मोस्ट प्रोबेबली इस बार TISS का टाइम टेबल चेंज हो जाए। दे विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन जैन, जो पहले हुआ करता था। पहले दे यूज्ड टू कंडक्ट द एग्जाम इन जैन ओनली। तो वी डोंट हैव मच टाइम, वी आर ऑलरेडी इन द 3rd month ऑफ 2021। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वी ओनली हैव 9 months इन आवर हैंड टू कवर ऑल द जीके। एंड लेट मी टेल यू गाइज, अभी से अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हो जीके का, तो बाय अक्टूबर, नवंबर यू विल बी गुड इनफ, you will be confident enough to attempt questions in the GK section, okay। तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या कहता है? नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन, ओके, नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। अब टेरिटरीज ऑफ द यूनियन मतलब क्या, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट थिंग्स आर कंसिडर्ड एज टेरिटरीज ऑफ द यूनियन, ओके। सबसे पहले तो ये जो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, ओके, ऑल दिस इंटरनेशनल बाउंड्रीज वी हैव, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर केरला तक, तमिलनाडु तक, फिर गुजरात से लेकर नागालैंड तक, या फिर अरुणाचल प्रदेश तक। पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं, all these territories और all these boundaries that we have, okay, उसे यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया कहते हैं। Yes, Anusha, TISSNET date is declared. It is on 16th of March. 16th of March. So it is 5 days from now. TISSNET का रिजल्ट आने वाला है। आई एम इक्वली नर्वस विथ यू गाइज। जैसा तुम लोगों को नर्वसनेस हो रहा है, वैसे मुझे भी हो रहा है। आई होप ऑल द पीपल हु अटेंडेड माई सेशन एंड वर माई सेशंस वर हेल्पफुल। यू गाइज क्लियर TISSNET आप क्लियर करो, ओके।
तो नेम सबसे पहला तो ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है हमारा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज यूनियन ऑफ इंडिया या फिर टेरिटरी ऑफ द यूनियन। फिर ये जो स्टेट के बाउंड्रीज है, ओके, ऑल द स्टेट बाउंड्रीज दैट वी हैव, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, all these things, all these territories that we have, okay, this will also be considered as territory of the union and such territories which are a part of union territory, okay, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव है। सो ऑल दीज आर ऑल्सो, ओके, ऑल दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द टेरिटरी ऑफ यूनियन, ओके। और सारे नेम्स जो है सारे स्टेट्स के और सारे यूनियन टेरिटरीज के जो नेम्स है, दोज आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है इस आर्टिकल के तहत, दैट इज जो पहला ही आर्टिकल है दैट सेज इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of states, okay, India, that is Bharat. Now this is the first part that we need to understand. India, that is Bharat, that means हमारे देश को there are two official names, okay, two official names, India, that is Bharat. अब ये ऐसा क्यों है? Why do we have two different names for one country? तो इसका रीजन ये है कि when the Constituent Assembly, जब 1946 में 1947 में जब हमारा Constituent Assembly बना था, and when we had to adopt a name for our country, there was no unanimous decision among the members of the Constituent Assembly, okay, Constituent Assembly के जो members थे उनके बीच में बिल्कुल भी unanimous decision नहीं था। Half of the members said कि we are a traditionally and culturally rich country, so we should be adopting our traditional name, that is Bharat, okay, that is Bharat. But half of the members again said कि India is moving towards modern times, हम modern times की तरफ चल रहे हैं, तो we should probably adopt the traditional modern name for India, that is India, okay. So उस समय के जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि if there is no unanimity, particularly we should adopt both the names, okay, हम दोनों भी नाम को अडॉप्ट कर देते हैं। सो दैट इज इट बिकम्स इंडिया, ओके, इट बिकम्स इंडिया, दैट इज भारत। ये पहले आर्टिकल में मेंशन है। सो वी हैव टू ऑफिशियल नेम्स फॉर आवर कंट्री, इंडिया, दैट इज भारत। हाउएवर द सेकेंड टर्म is really important for you to understand, shall be a union of states, okay, shall be a union of states. Now what do we mean by this term, that is union of states, okay, union of state मतलब क्या? Now अमेरिका में हम लोग अगर देखते हैं the 50 states, okay, the 50 states that are there in America are an outcome of an agreement, okay, are an outcome of an agreement. मतलब क्या, अमेरिका के जो 50 states है, all the 50 states of America have entered into an agreement with each one of them. हर American state has entered into an agreement with each one of them. इसीलिए, okay, each one of them, इसीलिए they are a federation, okay, they are a federation, okay, they are a federation, they are called as federation. However, India is not an outcome of an agreement. हमारे यहाँ पर अग्रीमेंट, हर एक स्टेट ने एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट नहीं किया है। द स्टेट सिंपली केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूनियन, ओके, टू फॉर्म अ यूनियन। इसीलिए यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। द एक्सप्रेशन दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट फेडरेशन। अमेरिका में अगर हम लोग देखेंगे, द 50 स्टेट्स आर federation of states, okay, it is a federation of state. Why? Because each state has gone into an agreement with each of the 50 states. वैसा इंडिया में नहीं हुआ है, इसीलिए उसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, ओके, इसीलिए उसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। समझ में आया गाइस? हैव यू अंडरस्टूड आर्टिकल नंबर 1 प्रॉपर्ली? आर्टिकल नंबर 1 समझ में आ गया आप लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड आर्टिकल नंबर 1 प्रॉपर्ली? India, that is Bharat, and shall be a union of state. And what thing comprises of the territory of the union? What thing comprises of the territory of the union? ये बात समझ में आ गई है guys? Yes, correct. Clear?
शुभम को तो क्लियर है, बाकी सब लोगों को क्लियर है? रेस्ट अदर पीपल आर क्लियर विद इट? बाकी सब लोगों को क्लियर है गाइस? कम ऑन, इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? शुभम, अनुषा और अमृत को क्लियर है. बाकी के जो 15 people who are watching this video, you guys have any doubt? Clear. Fantastic. चलो, विशाखा, कल्याणी को भी क्लियर है. Now guys, these two articles are very important. Okay, these two articles बहुत important है, इसे जरा ध्यान से सुनना. Particularly it says admission or establishment of new states. Okay, admission or establishment of new state. मतलब क्या है? पर्टिकुलरली दिस प्रोविजन. नाउ आर्टिकल नंबर 2 and 3 अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा बहुत सेम ही, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट. हाउएवर द प्रोविजंस आर वेरी मच डिफरेंट. ओके, प्रोविजंस अलग अलग है. इसमें कैसे अलग अलग है मैं बताता हूं आप लोगों को. ओके, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट मतलब क्या है? मान लो कि टुमारो वी गो इन अ स्टेट ऑफ, यहां पर कोई एक स्टेट है. ओके, फॉर एग्जाम्पल पाक वाला ओके, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी एक्चुअली हैव अ टेंशन रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान. we always have an external aggression with Pakistan, और we always have an external aggression या फिर war like situation with Pakistan. अगर कल, okay, if tomorrow we go into a state of war with Pakistan, okay, अगर हम कल पाकिस्तान के साथ state of war में चले जाते हैं and we acquire some parts of पाकिस्तान के कुछ स्टेट को अगर हम acquire कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सिंध और पंजाब वाला जो पार्ट है पाकिस्तान का, ये वाला अगर हम अक्वायर कर लेते हैं, सो ऐसा तो नहीं होगा. ओके, ऐसा तो नहीं होगा कि हम दो देश एक साथ चलाएंगे. वी विल नॉट बी running two countries at the same time. What do we have to do? We have to include that part. जो सिंध पंजाब का जो पार्ट है, उस पार्ट को हमें इंडिया में एज अ स्टेट करके इंक्लूड करना होगा. सो पर्टिकुलरली आर्टिकल नंबर 2 जो है, it particularly speaks about admission of a state which is not an existing part of the country. Okay, इंडिया का वो एग्जिस्टिंग पार्ट नहीं है. हम एक नए ऑल टुगेदर एक नए स्टेट को इंक्लूड कर रहे हैं इंडियन यूनियन में. दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 2. ऑन द कॉन्ट्ररी, ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब इसके एग्जैक्टली अपोजिट, वी आर इंक्लूडिंग अ स्टेट विच वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर. मतलब हम दो स्टेट्स को क्लब करके एक स्टेट बना रहे हैं, या फिर एक स्टेट को डिवाइड करके दो स्टेट्स बना रहे हैं. जैसे हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश. ओके, उत्तर प्रदेश के साथ जो हुआ है, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा बनकर उत्तराखंड बन गया है. बिहार का एक हिस्सा अब झारखंड बन गया है. मध्य प्रदेश का एक हिस्सा अब तेलंगाना बन गया है, छत्तीसगढ़ बन गया है. आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा तेलंगाना बन गया है. ओके, सो वी कैन सी एग्जांपल्स हियर हाउ एन एग्जिस्टिंग स्टेट को कार्व करके हमने एक नए स्टेट को बनाया था. हाउएवर उसे हम ऐसे ही नहीं बना सकते. व्हाट डज द प्रोविजन सेज? ओके, व्हाट डज द प्रोविजन सेज? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, पार्लियामेंट मे बाय लॉ. ओके, पार्लियामेंट मे बाय लॉ मतलब अंडर आर्टिकल नंबर 3 के प्रोविजन से अगर हमें कोई एक नया स्टेट बनाना है, इफ वी वांट टू मेक अ न्यू स्टेट गिवन अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल नंबर 3, the parliament has to pass a law. अब ये लॉ क्या है, इसे तुम लोग ठीक से समझो. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू एन एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं तुम लोगों को. फॉर एग्जाम्पल एक बिल पास करना पड़ता है. ओके, अ बिल इज सपोज टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट. ओके, अ बिल इज सपोज टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट, जब भी मैं पार्लियामेंट कहता हूं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, एक होता है लोकसभा, ओके, एंड एक होता है राज्यसभा. सो दिस इज व्हाट, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पार्लियामेंट. ओके, पार्लियामेंट के ये 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. नाउ गाइज, ओके, सी हियर लोकसभा एंड राज्यसभा. नाउ शुभम,
फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें छत्तीसगढ़ बनाना है, ओके, हमें छत्तीसगढ़ बनाना है. सो वी हैव टू carve out Madhya Pradesh and make Chhattisgarh. So we are going to refer to the provisions which are given under article number 3 of the constitution. Okay, article number 3 of the constitution में हमें ये बनाना है. अब इसके लिए एक बिल पास करना पड़ता है. Parliament has to pass a bill, but this bill cannot be introduced, although it can be introduced in either of the houses. किसी भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. It can be introduced in Lok Sabha also, it can be introduced in Rajya Sabha also, but it cannot be introduced without, okay, without the recommendation, okay, without the recommendation of the president. Okay, president के recommendation के बिना हम इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. Now let's suppose कि शुभम को ये बिल है, okay, this is a bill consisting of the provisions to carve out a new state called as Chhattisgarh from Madhya Pradesh. Okay, मध्य प्रदेश से हमें एक नया स्टेट बनाना है छत्तीसगढ़. एंड शुभम इज द मेंबर ऑफ लोकसभा. ओके, मेंबर ऑफ लोकसभा. तो शुभम क्या करता है? शुभम गोज टू द प्रेसिडेंट एंड टेल्स कि प्रेसिडेंट, आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस बिल in the house to carve a new state called as Chhattisgarh from Madhya Pradesh. So the president needs to recommend. तो president क्या करता है? President takes the bill. Okay, इस bill को president लेते हैं and he sends it to the concerned state legislature. Okay, concerned state legislature के पास वो president भेज देते हैं. मतलब in this case is मध्य प्रदेश. Okay, in this case is मध्य प्रदेश. president बोलते हैं कि देखो मेंबर एक शुभम करके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करना है उनको पार्लियामेंट में टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट फ्रॉम मध्य प्रदेश. ये रहा बिल. दीज आर द प्रोविजंस. यू चेक एंड गिव योर रिकमेंडेशन. हाउएवर द स्टेट हैज टू गिव its recommendation or state has to look over the bill and give it back to the president in under 6 months. Okay, 6 महीने के अंदर कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर ने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए. विथ रिकमेंडेशन प्रपोज कर सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं. सर मैट का जीके पार्ट परसेंटाइल में इंक्लूड होता है? नो विशाखा, मैट का जीके पार्ट परसेंटाइल में इंक्लूड नहीं होता है. ओके, तो स्टेट इज इन दिस केस एमपी इज द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर. तो एमपी के पास ये बिल जाता है, एमपी स्टेट लेजिस्लेचर इसके ऊपर डिस्कशन करती है. दे कैन सेंड इट बैक दिस बिल टू द प्रेसिडेंट विथ और विदाउट अमेंडमेंट. ओके, विथ अमेंडमेंट या फिर विदाउट अमेंडमेंट वो उसे वापस भेज सकते हैं. नाउ व्हेंस द प्रेसिडेंट रिसीव्स द बिल फ्रॉम द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, द प्रेसिडेंट देन गिव्स दिस बिल टू शुभम और रेकमेंड करते हैं. द प्रेसिडेंट रेकमेंड्स दिस बिल and then the member of parliament with Shubham in this case will introduce the bill in the parliament. तो जब ये bill introduce होता है parliament में, that is Lok Sabha, both the houses are supposed to pass the bill by simple majority. Okay, simple majority से उसे पास करना होता है. simple majority मतलब क्या? 50% plus 1 vote. Okay, 50% plus 1 vote, basically more than 50%. तो अगर लोकसभा ने इस बिल को 50% से पास कर दिया, द बिल विल गो टू द नेक्स्ट हाउस विच इन दिस केस इज राज्यसभा. एंड लेट्स सपोज कि अंजलि, सब्बवरपू, ओके, सब्बवरपू आर द members of Rajya Sabha. So the members of Rajya Sabha will also have to pass the bill by simple majority. Okay, simple majority से इस बिल को पास करना होगा. सिंपल मेजॉरिटी क्या है? 50% plus 1. Okay, 50% plus 1 is the simple majority. When both the house pass the bill by simple majority, दोनों भी हाउस जो है सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को जब पास करते हैं, द बिल गोज टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज एनी काइंड ऑफ वेटो पावर इन दिस केस, क्योंकि the president has only introduced this, the president has only recommended this bill in the parliament. So once both the houses pass the bill by simple majority, the president gives his assent, then the bill becomes an act. Okay, वो bill जो है वो act में convert हो जाता है and a new state is formed called as Chhattisgarh from the existing state, that is Madhya Pradesh. समझ में आया guys? Have you understood provisions under article number 3?
प्रोविजंस अंडर आर्टिकल नंबर 3 के समझ में आ गए आप लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड द प्रोविजंस? हैव यू अंडरस्टूड द प्रोविजंस गाइस? विशाखा संतानी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. Yes, Amrit, we are proactive. I have felt कि 2021 के बैच को कितना तकलीफ हुआ था जीके का प्रिपरेशन करने के लिए टिसनेट में. A lot of students were literally in a lot of problem at the end. इसीलिए मैंने इस साल डिसाइड किया है कि 2022 का प्रिपरेशन काफी अच्छे से हम लोग करेंगे, वेल प्लान्ड मैनर में करेंगे. इसीलिए मैंने 2022 बैच भी शुरू कर दी. ओके, alright. Harshada Gole, good evening, welcome to the class. And article number 4 speaks about, okay, article number 4 speaks about कि जभी भी हम आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3, ओके, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के तहत कभी भी लॉज को पास करेंगे या फिर चेंजेस करेंगे, स्केड्यूल फर्स्ट, ओके, स्केड्यूल फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्केड्यूल फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्केड्यूल फर्स्ट में नेम्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दिए हैं. तो अगर हमें एक नया स्टेट बनाना है तो ऑब्वियसली हमें उस स्टेट का नाम जो है वो उस लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा. वी हैव टू ऐड इट इन दैट लिस्ट. एंड स्केड्यूल फोर्थ, ओके, स्केड्यूल फोर्थ मीन्स एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा. ओके, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा मतलब अगर कोई एक नया स्टेट बनाया गया है तो ऑब्वियसली उन्हें हमें राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा. तो वी हैव टू चेंज दैट सिनेरियो ऑल्सो. तो राज्यसभा का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा. सो अगर हम आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के तहत कोई भी चेंजेस करते हैं, वी हैव टू अमेंड स्केड्यूल फर्स्ट एंड स्केड्यूल फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज व्हाट इज गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आया गाइज? सर, यूपीएससी 2022 के लिए कुछ टिप्स दे दो, प्रिपरेशन में क्या ध्यान रखे, आपका नॉलेज नेक्स्ट लेवल है. अमित, इफ यू आर फोकसिंग ऑन यूपीएससी 2022, फोकस मोर ऑन एनसीईआरटीज. ओके, एनसीईआरटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करो क्योंकि एनसीईआरटीज आर द फाउंडेशन ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन. पहले सारे एनसीईआरटीज फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करो, को पढ़ो, उसे रिवाइज करो. साइमल्टेनियसली कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर्स. ओके, न्यूज़पेपर द हिंदू को काफ़ी अच्छे से पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे पढ़ो. वंस यू आर डन विथ एनसीईआरटीज देन यू कैन शिफ्ट टू रेफरेंस बुक्स या फिर क्लास के जो नोट्स होते हैं, वाजीराम, राउज, शंकर आईएएस, इसके जो नोट्स होते हैं यू कैन रेफर टू दैट. एंड साइमल्टेनियसली डोंट फॉरगेट टू टेक टेस्ट. ओके, टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन. जितना पढ़ते हो उतना टेस्ट करो, रिवाइज करो, टेस्ट लो, मेक अ प्लान. ओके, मंथली प्लान बनाओ, वीकली प्लान बनाओ, डेली प्लान बनाओ एंड मेक श्योर यू एग्जीक्यूट इट. स्मॉलेस्ट थिंग इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल इन यूपीएससी. आप जिस वे में अपने प्लान को कैरी फॉरवर्ड करते हो उसमें आपका पूरा इसेंस है. एंड टेस्ट सीरीज ये वो सब कुछ करते ही रहो. Alright, this is what you should be following for ideal preparation for UPSC. Optional को काफी अच्छे से choose करो. See, there are 25 subjects in the optional list of UPSC. See which you are comfortable with. मेरा political science था because I was very much inclined toward political science. PS and IR मेरा optional subject था and I love that subject to the core. Make sure जो भी optional आप select करते हो यू गिव डेडिकेटेड वर्क टू ऑप्शनल एवरी डे, क्योंकि ऑप्शनल ये एक ऐसा चीज है यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. ऑलराइट, विशाखा संतानी, आई एम सॉरी आई डू नॉट हैव मच टिप्स फॉर कैट 2021 क्योंकि कैट में जीके नहीं आता है. ओके, कैट में जीके का सेक्शन नहीं है. However, I will suggest you to keep reading newspaper, इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदू. अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप पढ़ना उसे शुरू करो क्योंकि वो वैट में काफी काम आता है आपके. इट विल बी हेल्पफुल इन योर वैट.
प्लस VARC का जो सेक्शन है वोकैब आपका काफी अच्छा हो जाएगा इफ यू कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर. ओके, न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलरली पढ़ते हो, दिस इज वन हैबिट गाइज. ओके, one habit, reading newspaper is one single habit which will improve your personality 1000%. ओके, एक तो आपको करंट नॉलेज मिल जाएगा, प्लस आपका वोकैब भी अच्छा हो जाएगा, एंड प्लस यू विल बी एबल टू आर्टिकुलेट योर आंसर्स या आर्टिकुलेट योर वैट्स इन अ वेरी प्रॉपर वे. तो वन सॉल्यूशन फॉर मल्टीपल प्रॉब्लम्स इज न्यूज़पेपर रीडिंग, एंड दैट इज व्हाट आई डिड. ओके, ठीक है, चलो, क्लियर है एवरीबडी? एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी गाइज? एवरीबडी क्लियर? यस हर्षदा, आई इन्वेस्टेड 5 years ऑफ माई लाइफ इन यूपीएससी प्रिपरेशन. हाउएवर आई वाज वर्किंग. मैं फुल टाइम प्रिपेयर नहीं कर रहा था. आई वाज वर्किंग साइमल्टेनियसली एंड वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. ओके, चलो. Then all the people who are watching this, do not forget to like the video. इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए. How do you think my GK is so good? Because I dedicatedly studied for UPSC. इसीलिए GK is one of my very favorite subject. मुझे अच्छा भी लगता है, and I believe I have a good general knowledge. Noted. Thank you, sir. If I face any problem, तो I will keep coming for your valuable advice. Anytime, Amit, you're always welcomed. आप कभी भी welcome हो मेरे क्लास में. However, Unacademy पर there are some amazing educators who take UPSC classes. मृणाल sir है, Roman Seni, who's the founder of Unacademy. He himself takes sessions. सिद्धार्थ अरोरा है, Sunil Singh. All these amazing educators are there, and they take free sessions for your preparation. You can unlock it using my code RUSHI Rushi. इस कोड के साथ आप Unacademy के यूपीएससी कैटेगरी को भी अनलॉक कर सकते हो. ओके सर, स्टोरी आपने प्रॉमिस किया था कल. आई एम सो सॉरी अमृत, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया स्टोरी, बट आई विल टेल. मैं बताऊंगा जरूर. ओके, आई विल टेल, आई विल डेफिनेटली टेल. यस, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर joining for this session. Before we part ways for today, Iconic CAT Subscription 2021, इसमें आपको पर्सनल मेंटर दिया जाता है. I will try to get one story. I will try to get one story at 10 PM guys. पर्सनल मेंटर दिया जाता है. टेस्ट एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स आर गिवन. ओमेट्स का एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन एंड ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर इंक्लूडेड इन द Iconic CAT 2021. These are the amazing coach that you are going to get, and they are topped out. They have passed out from top B school. I am Bangalore, I am Ahmedabad, I am Calcutta, and I am Bangalore again. So amazing coach from top B school guys, जो आपके प्रिपरेशन को अच्छे आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे. These are the winners of Unacademy, जिन्होंने Unacademy के साथ पढ़ाई करके अपना IIM का सपना पूरा किया है. You can also be the next one in this list. वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसे हम Unacademy Combat कहते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें आप लाइव कॉम्पीट कर सकते हो विद इंडियाज बेस्ट, सुपर फास्ट एंड fun with all India live leaderboard, and this is absolutely for free guys. Unacademy Combat is free for you. The next combat will take place on 14th of March 2021 12 PM, and you have to use this code Rushi. Okay, इस कोड को इस्तेमाल करना है Rushi to unlock the combat for you. You can win scholarships up to 55 lakh rupees through this. Okay, 55 lakh rupees in this particular scholarships. So asking a doubt is also now a easy thing with Unacademy. आपको बस आपके लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है, आस्क अ डाउट फीचर पर क्लिक करना है, अपलोड योर डाउट स्पेसिफिकली. एक ही क्वेश्चन को आप अपलोड कर सकते हो. एक इमेज में दो डाउट्स नहीं हो सकते. यू कैन ओनली आस्क वन डाउट एट अ टाइम. अपलोड इट ऑन द application and sit tight, you will receive it within no time. This is a 24/7 features guys. ये 24/7 ये feature काम करता है, and this is absolutely free. Okay, it is for everybody. It is not exclusively for Plus members or Iconic members. It is for free. Everybody on Unacademy can ask their doubt. So check out this cool feature on Unacademy's learning app right now guys. आज ही उसे देखो. Last but not the least, the 1-year subscription plan for Plus goes for 17,500,
and the 2-year subscription plan for Plus goes for 21,000 rupees only. Similarly, for Iconic, the 1-year subscription plan goes for 30,000 rupees and the 2-year subscription plan goes for 41,000 rupees only. And do not forget to use this code RUSHI to get a straight away 10% discount on your subscription. Okay, अपने subscription पर 10% discount straight away मिल जाएगा. UPSC, MPSC, banks, CLAT, CAT, CBSC सारे इस पर आपको 10% discount मिल जाएगा. तो go for the subscription today. जैसे मैंने कहा था, there is going to be a price hike, so this is your golden opportunity to take the subscription on standardized rate. Thank you all, Amit, Shubham, Sabbavarapu, Aviral, Harshada, everybody guys for joining this session. You guys were absolutely fantastic. I will see you. Thank you so much. Let's crack it, guys. Bye-bye.